Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss one concept from ethics paper. So in ethics paper, there is a philosophy segment, and in philosophy segment, there are different thinkers, under virtue ethics. So under virtue ethics, you have Aristotle, Plato, Socrates, Buddha, Mahavira, and many more philosophers. So today, in this lecture, we will discuss one important concept from Buddhism, that is concept of Four Noble Truths. So I have already recorded some lectures in which I have discussed different philosophical ideas given by Aristotle, Plato, concept of eudaimonia, classification of people on morality, what is dialectic methodology according to Plato, etc. So ये जो सारी चीज़ें हैं वो lectures you can check out on my YouTube channel. So in this lecture we will be discussing first the idea of Four Noble Truths. Okay, so what is this concept of Four Noble Truths in Buddhism that we will try to discuss. So guys, and in Buddhism, okay, this entire philosophy of Buddhism is centered on these Four Noble Truths. Okay, Four Noble Truths are by realizing that only you can achieve Buddhatva. Okay, and in these Four Noble Truths, Buddha has explained his entire philosophy that how in life there are inevitable sufferings. Life has a suffering. How it gets produced, this causal causes of this suffering, and if once we know the causes, how we can destroy those causes. Okay, karmic bondages, etc. And by destroying causes, he explained how suffering can be ended. And to destroy that, okay, he gave us the Four Noble Truths. And in last Noble Truth, he gave the way to destroy it. Okay, through Madhyam Marg and Ashtangat Pratipad Gamini Marg, that is middle path and in Eightfold Path. Okay, so through middle path and Eightfold Path, which comes under fourth Noble Truth. Okay, ultimate Dukkha Mukti or Dukkha Nirodh. Okay, end of suffering can be achieved. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोर नोबल ट्रूथ्स का, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. और इसी रिलेटेड कंसेप्ट्स और इन चार जो फोर नोबल ट्रूथ्स है, ये चार ट्रूथ्स को ओके चार आर्य सत्य भी कहा जाता है. ओके, इन इंडियन लैंग्वेजेस और इन संस्कृत. सो एक चार आर्य सत्य जो बुद्धिज्म में आते हैं, दीज आर दिस फोर नोबल ट्रूथ्स. देन इन वेदांता फिलोसॉफी, ओके, whose base is Upanishad, Bhagavad Gita, and Badrayan's Brahma Sutra. So Prasthantrayi is the base of Vedanta. And under this Vedanta, when you achieve ultimate moksha, ultimate end, so when you achieve Vedanta mein ultimate moksha, you realize four, okay, Chatu, the Lave Chatu Satya is there. There are four Mahavakya. So in Vedanta comes different concept of Mahavakyas, four Mahavakyas. And these four Mahavakyas of Vedanta are, okay, that is Aham Brahmasmi, मुझ में ब्रह्म है, तत्वमासी, that Brahma is inside you, तुझ में भी ब्रह्म है, आप में ब्रह्म है. Then I am आत्मा ब्रह्म, जो पृथ्वी पे हर एक जीव है, आत्मा है, पेड़ पौधे, आजू बाजू के लोग, प्राणी, जानवर, सब हर चीजों में, ओके, जो आत्मा है, ओके, उनमें भी जो एक आत्मा है. और ये सारी आत्माएं, मुझ में जो आत्मा है, आप में जो आत्मा है, ये सारे जीवों में जो आत्मा है, ओके, वही वो परमात्मा प्रज्ञानाम ब्रह्म. सो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमासी, अयम आत्मा ब्रह्म एंड प्रज्ञानाम ब्रह्म. सो ये जो चार महावाक्य है वो वेदांता में भी आते हैं. सेम है जैनिज्म में भी इसी रिलेटेड कंसेप्ट है, दैट इज अनंत चातु सत्यास. सो इन जैनिज्म व्हेन पर्सन रीचेज द एंड स्टेज, व्हेन ही बिकम्स केवली, अचीव्स कैवल्य ज्ञान, he becomes Mukta Purush or liberated soul or Siddha Purush. So Kaivalya Gyan, acquiring Kaivalya Gyan is very important stage in Jainism to achieve the ultimate stage of Mukta Jiv. And to when person achieves this Kaivalya Gyan, okay, then he comes across or realizes these four Ananta Chatu Satyas. And these Ananta Chatu Satyas, okay, are your Ananta Gyan, Ananta Sukh, Ananta Darshan, and Ananta Virya. So Ananta Gyan, infinite knowledge, Ananta Darshan, infinite perception, Ananta Sukh, infinite happiness, infinite pleasure, and Ananta Virya, okay, infinite power. And these four Chatu Satyas, okay, are achieved by this Kevali have this Ananta Chatu Satyas through Kaivalya Gyan. And such a person, Kevali, ends up becoming the Siddha Purush or Mukta Jiv. So there are four noble truths, चार आर्य सत्य in Buddhism, अनंत चातु सत्यास in Jainism,
एंड 4 महावाक्य इन वेदांता। सो अलग अलग कंसेप्ट है, वो हर जगह पे देख लेना। सो 4 नोबल ट्रूथ्स इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी दैट वी विल डिस्कस। सो दिस 4 नोबल ट्रूथ्स, okay, in first noble truth Buddha discussed about the cause of suffering, or life has an inevitable suffering। दुनिया में inevitable suffering है, everyone suffers, so life has an inevitable suffering। then in second truth he talked about there is a cause to our suffering, और ये जो inevitable suffering है, हर चीज का एक cause होता है, there is no effect without cause and every effect has a cause and every cause has an effect। और इसमें एक बुद्धा की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, इंटरडिपेंडेंट कोओरिजिनेशन, दैट इज प्रतीत्य समुत्पाद। मैं उस पर अलग एक रिकॉर्डिंग करूंगा, वो देख लेना, बहुत हेवी एंड बहुत क्लासिक कंसेप्ट है बुद्धिस्ट का, मेटाफिजिक्स का, बुद्धिज्म की मेटाफिलोसॉफी का। सो यू कैन चेक दैट आउट। सो ये देयर इज अ कॉज टू अवर सफरिंग, ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैनिज्म बुद्धिज्म में, ओके। तो सेकेंड नोबल ट्रूथ, उसमें एक कंसेप्ट आता है प्रतीत्य समुत्पाद। सो हर देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज and every cause has an effect, and so even suffering has a cause। So he explained that in second noble truth। then in third noble truth Buddha explained there is an end to suffering, and every suffering, okay, has an inevitable end। हर दुख का निरोध हो सकता है, okay, by altering the cause you can alter the effect, by destroying the cause you can destroy the effect। And that he explains in his third idea, that there is an end of suffering. Though there are inevitable suffering, they can be ended, okay। So initially Buddha says there is an inevitable suffering, but by the end he says suffering can be ended। तो बुद्धिज्म के बारे में जो कहा जाता है कि बुद्धिज्म की जो शुरुआत है थ्योरी की बुद्धा की, स्टार्ट विद एक्सट्रीम पेसिमिज्म कि दुनिया में सिर्फ दुख है, एंड एंड्स विद एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, हर दुखों का निरोध हो सकता है, ओके, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है देयर इज ए एंड ऑफ सफरिंग, एंड द एंड टू सफरिंग इज कंटेन्ड इन द 8-fold पाथ। और ये जो 8-fold पाथ की थ्योरी दी बुद्धा ने, उसके बारे में हम अलग से मैं एक आध रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, वो भी देख लेना। सो 8-fold पाथ में जो 8-fold पाथ है, सफरिंग का अल्टीमेट एंड गोल इज बाय लिविंग द लाइफ थ्रू 8-fold पाथ। और 8-fold पाथ पे जब आपको काम करना है, वो जो काम करना है आपको सम्यक मार्ग से करना है। एंड हाउ टू डू दैट थ्रू सम्यक मार्ग, तो उसमें उन्होंने मिडल पाथ की भी आइडिया दी। तो ये जो 8 पाथ्स हैं 8-fold पाथ के, सबको आपको सम्यक मार्ग से चलना है, ओके, सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, ओके। तो इस तरह से 8-fold पाथ से यू कैन एंड द सफरिंग। अब ये जो बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ्स है, काफी अच्छे से आपको समझ में आएंगे इफ यू स्टडी देम इन हिंदी और उनके हिंदी लैंग्वेज में। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस 4 नोबल ट्रूथ्स थ्रू this major 4 noble truths in Hindi now। So भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए 4 आर्य सत्य, ओके। तो सबसे पहला आर्य सत्य जो है कि बुद्धिज्म बहुत पेसिमिज्म से थ्योरी स्टार्ट होती है, बट एंड्स विद एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म। तो ये जो बुद्धा का पहले कहना है कि सर्वम दुखम, संसार में दुख ही दुख है, ओके, कोई नहीं जो इन दुखों से मुक्त है। जब गौतम बुद्ध एक बार मार्केट में गए अपने सारथी के साथ, चंद के साथ, और तब उन्होंने जो 4 लोगों को देखा, ही सॉ अ ओल्ड मैन, अ मैन हु इज डिजीज्ड, मैन हु इज डेड, एंड देन ही रियलाइज कि मैं भले भी राजा हूं, राजा का बेटा हूं, मैं पैलेस में कितनी भी लैविश जिंदगी जी रहा हूं, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी बीमार पड़ूंगा, एक दिन मैं भी मरूंगा। तो दिस इज द अल्टीमेट पेन, सफरिंग्स। सो लाइफ में दुख ही दुख है और हर कोई दुखी है, सर्वम दुखम, ओके। और ये जो छोटे मोटे दुख है वो सबके पास होते हैं, कि मुझे कोई बच्चा नहीं है, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, छोटे मोटे दुख तो सबके पास होंगे। लेकिन 3 दुख जो है, ओके, जो बुद्धा ने कहा यूनिवर्सल सफरिंग, ओके, जो हर किसी को है ही, फिर वो राजा हो या भिखारी हो, ओके। तो 3 दुख जो सार्वभौमिक है, दैट इज हर एक को यह दुख है, जरा, मरण, व्याधि, ओके। जरा बीमार पड़ोगे, जरा बूढ़े हो जाओगे, व्याधि बीमार पड़ोगे, और मरण, ओके, अल्टीमेट डेथ, ओके। सो ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, दीज आर द सार्वभौमिक यूनिवर्सल सफरिंग्स। पृथ्वी पे जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको ये दुख होगे ही होगे। नो वन कैन एस्केप these 3 sufferings, okay।
सो फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज सर्वम दुखम, संसार में दुख है और हर कोई दुखी है। ओके और ये जो दुख है ना, इनको एक्सेप्ट करो कि दे आर इनएविटेबल सफरिंग और इनसे हमें डील करना है और ये इसी लाइफ में यहीं पे पृथ्वी पे रह के करना है। और इसीलिए बुद्धा ने बहुत क्लासिक थ्योरी बताई थी कि बहुत सारी आइडियोलॉजी में जो चल रहा था कि ये लाइफ जो है ना, ये मृत्यु लोक है और इसको छोड़ के स्वर्ग में जाना है। बुद्धा रिजेक्टेड दैट आइडिया। बुद्धा सेड यस, ये मृत्यु लोक है, यहां पे बहुत सफरिंग है, लेकिन इस सफरिंग का यहीं पे सर्वनाश करना है। लेकिन ये मृत्यु लोक है और मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, जहां पे बहुत सारा प्लेजर्स होंगे। ओके कल्पवृक्ष होगा जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। बिकॉज ऑफ दिस पीपल ओके नॉट लिविंग दिस लाइफ दैट दे हैव। और इसलिए जैनिज्म बुद्धिज्म में दे डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और मेटाफिजिकल एंटिटी। बुद्धा ने कहा मुझे कोई भगवान स्वर्ग नर के डिबेट में ही नहीं जाना, जिसका कोई मेटाफिजिकल एविडेंस नहीं है, जिसका कोई एंड कंक्लूजन नहीं है, ऐसी डिबेट में जाना ही नहीं। ओके यही एक लाइफ है दैट इज रियल एंड आई वांट टू एड्रेस द प्रॉब्लम, द सफरिंग इसी लाइफ का, इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पे उसका आंसर मुझे ढूंढना है। और इसलिए फर्स्ट बुद्धा का कहना था कि एक्सेप्ट करो सर्वम दुखम, दुखी दुख है, हर कोई दुखी है, 3 दुख सार्वभौमिक है, जरा मरण व्याधि। नाउ वंस यू एक्सेप्ट दैट ओके देन टेक योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ दैट मुझे ये डिस्ट्रॉय करने। लेकिन यही अगर नहीं मानोगे और यही लाइफ छोड़ के मुझे स्वर्ग जाना है, देन यू विल नेवर ट्राई टू एड्रेस दिस सफरिंग। इसलिए बुद्धा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी कि एक आदमी सड़क से जा रहा था, उसको आके एक बाण लगा, तो वो गिरा, लोग उसकी मदद करने आए, तो वो लोगों से बोलने लगा रुको रुको रुको, मुझे पहले ये बताओ कि मुझे बाण मारा किसने, उसका नाम क्या है। फिर वो बोला रुको रुको, मुझे ये बताओ कि जिसने मुझे बाण मारा इसकी कोई मुझसे दुश्मनी थी या किसी और को मारना था, गलती से मैं उसका शिकार हो गया। फिर उसने बोला रुको रुको, मुझे ये बताओ ये जो बाण है ओके क्या ये जहरीला है, मैं जिंदा रहूंगा मरूंगा, क्या होगा मेरे साथ। तो तब एक आदमी ने उसको बोला कि देख भाई, पहले हमें ये तेरा बाण निकालने दे, तेरी जान बचाने दे, और उसके बाद तेरे जो सारे ये सवाल है कि तुम्हें बाण गलती से लगा या किसी ने रिवेंज में मारा, मारने वाला कौन था, जहरीला है या क्या, ये सारे ओके तुम्हें बाद में काम आएंगे। ओके सो अभी लेट अस एड्रेस योर सफरिंग, योर पेन। बुद्धा ने कहा पृथ्वी पे जो लोग हैं, ये सारे इंसान है, इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है कि इनको सबको ओके बात की पड़ी है, क्वेश्चंस पड़े कि मृत्यु के बाद क्या, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हीं चीजों में अटके पड़े हैं। एंड दे आर नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स, द सफरिंग दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग इन दिस लाइफ। एंड बुद्धा वांटेड टू एड्रेस दोज सफरिंग्स दैट पीपल सफर इन दिस लाइफ। और उसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज जो है फर्स्ट नोबल ट्रूथ में, यू एक्सेप्ट देयर इज अ सफरिंग। 3 sufferings are inevitable. So life has a suffering, these are inevitable. Okay, जरा मरण व्याधि तो हर किसी को है, कोई इससे अवॉइड ही नहीं कर सकता। बाकी तो छोटे मोटे दुख आप अवॉइड कर लोगे, लेकिन जरा मरण व्याधि 3 जो दुख है, यूनिवर्सल सफरिंग, सार्वभौमिक है, कोई उनका अवॉइड नहीं कर सकता। तो अंडरस्टैंड दैट देयर आर इनएविटेबल सफरिंग्स, हर किसी को इनको सफर करना है। अब ये सफरिंग जब आएंगे तो इनको कैसे डील करोगे, ये ज्यादा मैटर करेगा। सफरिंग को छोड़ के, मृत्यु लोग समझ के, सफरिंग की वजह से ये दुनिया का ही त्याग कर दो या कहीं जाके जंगल में सब छोड़ छाड़ के अपने शरीर और प्राण का त्याग कर दो, दैट्स नॉट द बुद्धिज्म में अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट नोबल ट्रूथ सर्वम दुखम, संसार में दुखी दुख है, हर कोई दुखी है, 3 दुख सार्वभौमिक है। फिर बुद्धा ने बताया सेकेंड नोबल ट्रूथ, दुख का समुदाय का कारण तृष्णा है। फिर ये जो सारे दुख है उसका एक कारण है ओके, और ये दुख का समुदाय का कारण है तृष्णा ओके, दैट इज रिजेक्शन ऑफ परमनेंस। तो सारे दुखों का बुद्धा ने कहा देयर इज अ कॉज। तो सेकंड नोबल ट्रूथ काफी बड़ी फिलॉसफी है, जिसमें बुद्धा ने कहा कि हर दुनिया में जो चीज हो रही है, प्रतीत समुत्पाद, इंटरडिपेंडेंट कोओरिजिनेशन, देयर इज एन इफेक्ट एंड देयर इज अ कॉज, एंड नथिंग, नो इफेक्ट इज विदाउट कॉज, एंड फॉर एवरी कॉज देयर इज एन इफेक्ट, एंड कॉज एंड इफेक्ट आर इंटरडिपेंडेंट। तो बुद्धा का कहना था कि आप आपके घर के बाहर का कोई एक पेड़ भी काट रहे हो ना, यू डोंट अंडरस्टैंड ओके, बट वन वे और अदर वे ओके यू हैव सफर्ड, और आपने जो वो पेड़ काटा ओके, वन वे और अदर वे यू हैव रिड्यूस्ड योर लाइफ, मे बी एटलीस्ट 1 minute 1 second, यू मे नॉट नो, बट यू आर सफरिंग। और इसलिए ये जो है इंटरडिपेंडेंट कोरिजिनेशन, और आपने घर के बाहर कोई पेड़ लगाया, यू डोंट नो
बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू माइट नॉट इवन रियलाइज, बट आपकी जिंदगी एक मिनट से ही सही बड़ी होगी. सो एवरी एक्शन यू डू इन लाइफ, okay, has a karmic relation with its effects, and cause and effect are very strongly linked with the karmic impression or karmic effect. तो इसी हिसाब से फिर बुद्धा ने कहा कि सफरिंग भी लिंक्ड है आपके कॉज के साथ. सो एवरी सफरिंग हैज एन इनएविटेबल हैज प्रिसीडेड बाय द कॉज. सो इन सेकंड नोबल ट्रूथ बुद्धा एड्रेस दिस कॉज इफेक्ट थ्योरी. तो बुद्धा का कहना था कि एवरी इफेक्ट हैज एन कॉज, तो इवन सफरिंग इज एन इफेक्ट जिसका एक कॉज होगा या कॉज है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा. एंड फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट देयर इज सफरिंग, देन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस सफरिंग. फिर इसमें बुद्धा की प्रतीत समुत्पाद की थ्योरी आती है. उसके अलावा एक बुद्धा का द्वादश निदान चक्र, वो भी इसी का पार्ट आता है कि 12 वेज दिस कॉज इफेक्ट इज लिंक्ड. और उस 12 वेज को समझ के द्वादश निदान चक्र, ओके, द्वादश निदान चक्रों को समझ के आपको जानना है कि ये सफरिंग का ओरिजिन क्या है, रूट कॉज ऑफ सफरिंग. एंड फाइनली बुद्धा देन एक्सप्लेन कि दुख का समुदाय के 2 रूट कॉजेस है. क्या इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉज है तृष्णा, डिजायर. ओके, और ये जो डिजायर है तृष्णा, ओके, उसका दूसरा रीजन है डिजायर पैदा होने का वॉज इग्नोरेंस, अविज्ञा. सो इग्नोरेंस से तृष्णा पैदा होगी. ओके, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द रियल लाइफ पर्पज ऑफ लाइफ, रियल पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस, या रियलिटी अच्छे से नहीं जान पाओगे. और यही रियलिटी अविज्ञा की वजह से जान नहीं पाओगे. अगर विज्ञा आ गई आप में, इग्नोरेंस हट गया, रियलिटी जान गए, तो ऑटोमेटिकली तृष्णा, ओके, यू विल बी एबल टू एड्रेस द तृष्णा, डिजायर. तृष्णा को नाश करोगे तो आपके सारे सफरिंग्स भी आगे खत्म होते जाएंगे. सो इग्नोरेंस, अविज्ञा, एंड तृष्णा, डिजायर आर द 2 मेजर रूट्स or causes of the suffering that Buddha wanted to address. Okay, अब ये जो डिजायर, इग्नोरेंस, द कॉजेस ऑफ सफरिंग, जो बुद्धा ने लिंक की बात की, इसमें बहुत बुद्धिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं. कंसेप्ट ऑफ नॉन सेल्फ भी उसी में आता है. अब ये सारे बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, ये मैं यहां नहीं पढ़ा सकता. मेरे दार्शनिक आईएएस ऐप पे व्हेन आई विल डिस्कस दिस इन माय इथिक्स क्लासेस, इन माय एसे क्लासेस, तो काफी डिटेल में आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस आइडियाज. तो वहां पे बुद्धिज्म की एक आइडिया आती है नॉन सेल्फ. तो ये जो नॉन सेल्फ का कंसेप्ट है, ओके, जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू, कि रियलिटी, ओके, वी डोंट एग्जिस्ट एज अ सेल्फ. ओके, एवरी लाइफ इज अ ट्रांजिएंट. इवन आत्मा भी कोई परमानेंट नहीं है. लेकिन जब हम ये परमानेंस में मानते हैं, व्हेन एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, एवर चेंजिंग, ओके, वी बिलीव इन सेल्फ दैट डजंट एग्जिस्ट. और इसकी वजह से, ओके, जो चीजें परमानेंट है ही नहीं, उन चीजों से हम अटैच हो जाते हैं. और यही अटैचमेंट्स तृष्णा पैदा करती है. ओके, तो व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ रियलिटी, ज्ञान आपके पास आएगा, इग्नोरेंस हटेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड. सारी चीजें क्षणभंगुर है. जो क्षणिकवाद का कंसेप्ट है जैनिज्म, बुद्धिज्म में, वो यहां पे आता है. और ये क्षणिकवाद आपको समझ में आया, सारी चीजें कैसे क्षणभंगुर है, इवन आत्मा भी क्षणभंगुर है, तो यू विल नेवर डेवलप तृष्णा, डिजायर फॉर एनीथिंग एट ऑल. और तृष्णा नहीं होगी, डिजायर्स, अटैचमेंट नहीं बनेंगे, तो फिर सफरिंग भी पैदा नहीं होगा. तो सेकेंड नोबल ट्रूथ, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती है इसमें. प्रतीत समुत्पाद, द्वादश निदान चक्र, ये क्षणिकवाद, नॉन सेल्फ, शून्यवाद, ये सारी थ्योरीज. फिर आता है कि तृष्णा के निरोध से दुख का निरोध संभव है. फिर ये जो तृष्णा है, इसका डिस्ट्रक्शन कर दो, निरोध कर दो, ओके, तो ऑटोमेटिकली दुख निरोध भी हो जाएगा. डिस्ट्रॉय द कॉज, यू एंड द सफरिंग. फिर तृष्णा को कैसे डिस्ट्रॉय करना, क्या ये की जा सकती है, नहीं की जा सकती, की जा सकती है तो कैसे करना, ओके, ये चीजें सारी बुद्धा ने थर्ड नोबल ट्रूथ में एक्सप्लेन की है. ओके, तो सर्वम दुखम, दुखों का कारण, कारण तृष्णा, तो तृष्णा का निरोध से दुख निरोध कैसे संभव है, ये बुद्धा एक्सप्लेन करते हैं. और फिर ये निरोध अगर संभव है और अगर आपको करना है, देन यू नीड टू फॉलो फोर्थ नोबल ट्रूथ, दैट इज दुख निरोध प्रतिपद गामिनी मार्ग. तो दुख निरोध किया जा सकता है थ्रू एन 8-fold पाथ, अष्टांगिक मार्ग, या दुख निरोध प्रतिपद गामिनी, अष्टांग पद प्रतिपद गामिनी मार्ग. ओके, या दुख निवारण के लिए मार्ग है और दुख निवृत्ति ही मोक्ष है. सो अष्टांगिक मार्ग से दुखों से निवृत्ति पाओ और दुखों से निवृत्त होना वही मोक्ष है. अब ये जो 8-fold पाथ है, फिर यहां पे वो थ्योरी आती है, मिडिल पाथ भी उसी में आता है. तो बुद्धा ने 8-fold पाथ की बात की थी. ओके, उसमें बहुत सारी चीजें, साम्यक कर्म, और फिर आप जो कर्म अच्छे से करो, ज्ञान अच्छे से प्राप्त करो,
ओके, वाणी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये 8 फोल्ड पाथ सम्यक मार्ग मिडल से फॉलो करने। तो हर मार्ग 8 फोल्ड पाथ का जो है ना वो सम्यक दृष्टि से उस पर चलना है। तो सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सारे 8 फोल्ड पाथ से ये 8 फोल्ड पे आपको चलना है, अष्टांगिक मार्ग पे चलना है। और ये अगर चलोगे ओके तो दुखों से या आप मुक्ति पाओगे। जो दुख इनएविटेबल भी है, आएंगे भी, तो भी आपको आप में वो दुख पैदा नहीं कर पाएंगे, आपको उससे डर नहीं लगेगा। ओके, दुखों से आप मुक्त हो जाओगे और ये दुखों से निवृत्ति पाना ही मोक्ष है। और बुद्धिज्म अकेला ऐसा रिलीजन है जो आपको बताता है कि आप मोक्ष यही इसी लाइफ में पृथ्वी पे रह के पा सकते हो। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं होता। ओके, जब आप ये अष्टांगिक मार्ग, मिडल पाथ, सम्यक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, ये सारा चल के ओके दुखों से निवृत्ति पाओगे तो आपको वो मोक्ष, दैट हैप्पीनेस ओके इसी लाइफ में, इसी पृथ्वी पे यहीं पे मिलेगी। और इसलिए फोर्थ नोबल ट्रूथ में बुद्धा एक्सप्लेन्स दिस, दैट इज हाउ वी कैन एंड द सफरिंग। ओके, सो निर्वाण बुद्धा के हिसाब से या मोक्ष की जो आइडिया है, निर्वाण मतलब तृष्णा का बुझ जाना या दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति ही निर्वाण है। सो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करो। ओके, तृष्णा से मुक्त हो जाओ, विज्ञान पाओ। और इसलिए तृष्णा कैसे हटेगी? अविज्ञा को हटाओ, और अविज्ञा हटानी है, इग्नोरेंस, तो नॉलेज पाओ। इसलिए बुद्धत्व को प्राप्त करो। ओके, नॉलेज आया हर चीज का, साम्यक ज्ञान ओके आया आपके अंदर, तो ऑटोमेटिकली साम्यक ज्ञान से यू विल बी एबल टू एड्रेस तृष्णा। सो बुद्धा भी इसलिए बुद्धत्व को प्राप्त करना ओके इस पे बहुत फोकस करते हैं। ओके, सो दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति ही निर्वाण है, या तृष्णा का बुझ जाना यही निर्वाण है। तो इसलिए बुद्धिज्म में रूट्स ऑफ सफरिंग मैंने पहले कहा था, एक है डिजायर, तृष्णा, और दूसरा है इग्नोरेंस, अविज्ञा। ओके, एंड डिजायर क्या होता है? सो वांट्स दैट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। ओके, अटैचमेंट टू द नॉन परमानेंट इज द डिजायर। क्योंकि बुद्धा ने बोला हर चीज दुनिया में क्षणभंगुर है, क्षणिकवाद, नॉन परमानेंट है, लेकिन नॉन परमानेंट चीजों को भी ओके परमानेंट मानना और उनसे अटैच होना, यही डिजायर का डिजायर यहीं से पैदा होती है। और यही डिजायर, तृष्णा, आपको सफरिंग करवाती है, मेजर रीजन दुखों का। सो और मेजर उसमें भी 3 डिजायर्स की जो बुद्धा ने बात की, कनक, कामिनी, कदली। ओके, वाइन, वेल्थ, विमेन। ओके, ये जो सेंशुअल प्लेजर्स, मटेरियल प्लेजर्स, ये जो सारी चीजें हैं, इनके पीछे भागना, इनसे तृष्णा, इनसे अटैच होना। और ये अटैचमेंट ओके गलत कार्मिक अटैचमेंट, गलत कार्मिक बॉन्डेजेस बना के ओके हम तृष्णा को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जो कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाती, एंड वी कीप ऑन सफरिंग। और उसमें फिर मैं कभी, और बुद्धा का ये सिंपल कहना था कि मरने का डर, जरा मरण व्याधि, ये मरने का डर क्यों है? क्योंकि आपको जीने की बहुत इच्छा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि दुनिया में हर कोई इंसान जो पैदा हुआ वो एक ना एक दिन मरेगा। ओके, मृत्यु तो अटल है ना पार्थ, भगवद गीता में कृष्णा का पहला स्टेटमेंट है। तो हर कोई मरेगा, मृत्यु तो अटल है। ओके, देन रियलाइज दिस, अंडरस्टैंड दिस, दैट लाइफ इज नॉट परमानेंट। तो ये लाइफ परमानेंट नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये परमानेंट है, मैं तो अमर ही हूं, मरने ही नहीं वाला। और इसकी वजह से मरने का जो डर लगने लगता है, आपको लगता है ये लाइफ इज इमॉर्टल, आई एम इमॉर्टल, और इसकी वजह से, और फिर ये ऐसा क्यों लगता है? व्हाई यू थिंक कि लाइफ इज नॉट ट्रांजिएंट, लाइफ इज नॉट परमानेंट? ओके, ये या लाइफ इज परमानेंट क्यों मानते हैं, और उससे फिर अटैचमेंट्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज अनदर कॉज अविज्ञा, इग्नोरेंस, नॉट सीइंग द वर्ल्ड एज इट एक्चुअली इज। ओके, और इसी से अटैचमेंट पैदा होना, तृष्णा पैदा होना अविज्ञा से, और अविज्ञा का रीजन है, और सारे फिर वाइसेस जो पैदा होते हैं, गलत अटैचमेंट और उनको फुलफिल करने के लिए गलत चीजें जो हम करते हैं, ये सारे वाइसेस ओके ओरिजिनेट फ्रॉम द इग्नोरेंस। तो विज्ञान पाओ तो वर्च्यूज पैदा होंगे, गलत अटैचमेंट्स नहीं बनाओगे, गलत तृष्णा नहीं बनाओगे, ओके डिजायर्स नहीं डेवलप करोगे, और फिर वो दोनों हट गया तो मेजर कॉज ऑफ सफरिंग विल एंड। तो अगर ये ज्ञान पाना है और तृष्णा से मुक्त होना है तो फिर आपको चलना पड़ेगा 8 फोल्ड पाथ पे थ्रू मिडल वे। ओके, सो मिडल पाथ से 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो, एंड अल्टीमेटली दुख निरोध होके यू विल अचीव द अल्टीमेट मोक्ष। तो एक बेसिक आइडिया 4 नोबल ट्रूथ की, लेकिन थ्योरी काफी
कॉम्प्लेक्स या काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज भी है उसमें जो आपको पढ़नी पड़ेगी. सो मोक्ष निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म. सो निर्वाण डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज एग्जिस्टिंग, तृष्णा का न होना. सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग, ओके, निर्वाण मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज एग्जिस्टिंग, तृष्णा का न होना, यही अल्टीमेट निर्वाण की आइडिया है. फिर उसमें बुद्धा ने बहुत सारी फिर चीजों की बात की कि बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग करने से प्राप्त शांति, ओके, इसी को बोला जाता है मोक्ष. सो व्यक्तिगत इच्छाओं से परित्याग करके एक ये तृष्णा का निरोध करके जो आपको शांति प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी, यही मोक्ष, यही निर्वाण, और ये आपको इसी जन्म में, यही लाइफ पे, पृथ्वी पे मिलेगा. बुद्धा इसी की गारंटी दे रहे थे. ओके, जो बाकी धर्मों में मरने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, ओके, जन्नत में जाने के बाद, बुद्धा के लिए मोक्ष पृथ्वी पे इसी लाइफ में. सो मेजर रीजन ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज तृष्णा. और तृष्णा क्यों पैदा होती है? थ्रू अटैचमेंट, डिजायर, क्लिंगिंग, ग्रीड, क्रेविंग, लस्ट, मटेरियल चीजों के पीछे भागो. इन सब की वजह से तृष्णा पैदा होती है. एंड रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ दिस इज भाव तृष्णा और अविज्ञा. ओके, और ये जो है सारी तृष्णा है, भाव तृष्णा सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कंसिडर की कि प्रकट होने की इच्छा या जन्म से जुड़ी इच्छा कि मुझे कभी मरना ही नहीं है. क्योंकि सबसे बड़ा डर जो जिंदगी में है इंसानों के लिए, मरने का डर, और ये सबसे बड़ा दुख जो है मरने का दुख, ये पैदा होने का रीजन दिस भाव तृष्णा. ओके, भाव, मुझे प्रकट होना है, मुझे जीना ही है, मुझे मरना ही नहीं है, ये भाव तृष्णा. और ये भाव तृष्णा इज अ मेजर रीजन ऑफ अविज्ञा, अज्ञान. सो नेचर इज टेम्पररी एंड नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज परमानेंट. और इसलिए बुद्धा का कहना था ये भाव तृष्णा क्यों पैदा होती है? बिकॉज वी कंसिडर एवरीथिंग परमानेंट. ये लाइफ भी मेरी परमानेंट है. ओके, और हर चीज, ओके, जो हम खा रहे, पी रहे, भोग रहे, सबको हम परमानेंट मानते हैं. और ये परमानेंट जो चीजें नॉन परमानेंट है उनको परमानेंट मानना, इसी से सारी डिजायर पैदा होती है. इसलिए नेचर इज टेम्पररी. सारा नेचर ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट. आत्मा भी परमानेंट नहीं है बुद्धिज्म के हिसाब से. ओके, शरीर भी परमानेंट नहीं है. सो नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज परमानेंट इंक्लूडिंग आत्मा. तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, आत्मा भी परमानेंट नहीं है. इसी को मैंने कहा था क्षणभंगुर और क्षणिकतावाद. ओके, नेचर इज अंडर कंटिन्यूअस फ्लक्स. ओके, कंटिन्यूअसली वो चेंज हो रहा है. नथिंग इज परमानेंट वेदर आत्मा और गॉड. एंड सो अटैचमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग दिस एटफोल्ड पाथ. और सो नेचर इज इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स, एवर चेंजिंग. और ये रियलिटी समझो विज्ञा प्राप्त करके, और फिर ये नॉन परमानेंट चीजों से क्लिंजिंग, ओके, क्रेविंग ऑफ दिस नॉन परमानेंट चीजें, ये बंद करो. डोंट क्रेव फॉर नॉन परमानेंट, डोंट डिजायर नॉन परमानेंट, डोंट क्लिंग और अटैच योरसेल्फ टू द नॉन परमानेंट. नॉन परमानेंट चीजों की तृष्णा से मुक्त हो जाओ. और वही अल्टीमेट बुद्धिज्म में निर्वाण, व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग, डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट यू कंसिडर परमानेंट, ओके, तृष्णा का न होना, that is ultimate मोक्ष. okay, so this is basic idea of बुद्धिज्म, एटफोल्ड पाथ और उससे मोक्ष का रिलेशन. लेकिन ये बहुत सिंपलिस्टिक वे से मैंने एक्सप्लेन किया. थ्योरी में बहुत हाई मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स भी है. सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर ऐप क्लासेस. सो डाउनलोड माय ऐप दार्शनिक आईएएस बाय कदम सर फ्रॉम गूगल प्ले ऐप स्टोर. अभी तो मैंने वहां पे कोर्सेज लॉन्च नहीं किए, लेकिन 1-2 महीने में ही वहां पे मेरे कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे. एंड यू कैन एनरोल फॉर दोज कोर्सेज. 100-120 आवर्स का इथिक्स का कोर्स होगा, 60 आवर्स का ऐसे का कोर्स होगा. काफी डिटेल में आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज आइडियाज टू ग्रेट डिटेल. एंड दीज कोर्सेज गाइज ऑफ माइन विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन for all your needs of essay and ethics paper. You don't have to study anything or do anything else other than these classes or my lectures. Okay. Then stay tuned to my Darshanik IAS app. If you like this lecture, do like it, subscribe it, and my channel. Share it with your friends. Help me grow. And also join me on my UPSC Ethics Telegram channel to download these notes. I am sharing these notes there. And also stay connected there where I will be sharing these PDFs. And you will also get the updates about my lectures. So thanks for listening guys, and stay tuned for the next lecture.